In today's video, we are going to talk about relative atomic mass, relative molecular mass, and mole concept. Very important topics, and also there are numericals based on these topics. So we'll take everything from basics ahead. Okay, let's start with the first topic, relative atomic mass. What is a relative atomic mass? Relative atomic mass is also known as atomic weight. Okay. Now, atoms being very small, extremely small, cannot be seen or weighed directly. We cannot weigh atoms directly. We cannot find what is the mass of an atom directly because they are very small. They they cannot be seen even with the most powerful microscope. So such small entities, how can they be weighed? But what is the need of weighing atoms? See, the need of finding the weight of atoms helps us to understand the chemical reactions in a more clearer manner. That's why there is a need for weighing the atoms. It helps us establish the law of conservation of mass and the law of constant proportions. We'll talk about those laws little later or maybe some other time. But right now, we must focus on how to weigh atoms. There are indirect methods of physics which have now enabled us to know the absolute mass of nearly all kind of atoms. The mass of hydrogen atom is found to be 1.67 into 3 1.6735 into 10 raised to 10 to the power minus 24 grams, while that of an oxygen atom, mass of oxygen atom is 26.565 multiplied by 10 to the power minus 24 grams. Is this easy to remember? Can you remember the mass of hydrogen and oxygen in grams? No, it's very difficult. Very small number. As these masses are too small, it is not convenient to use kilograms or grams as unit for measuring the masses of atoms. And therefore, it has been considered appropriate to use the mass of some standard atom as a unit and then relate masses of other atoms to it. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि देखो एटम्स के मास तो बहुत कम होते हैं, उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम एक नया यूनिट ही डिस्कवर कर लेते हैं ना। वो नया यूनिट क्या होगा? मास ऑफ सम स्टैंडर्ड एटम, वो होगा अपना यूनिट। उसको यूनिट बना देंगे। तो कौन से एटम को लेंगे? तो साइंटिस्ट्स ने सोचा कि सबसे ज्यादा अबेंडेंटली अवेलेबल एटम कौन सा है, मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल एटम कौन सा। देन साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन दैट मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल एटम इज कार्बन। तो कार्बन के जो मास है उसको हम लोग एक यूनिट मास बना देते हैं और बाकी सारे एटम्स के मासेस को कार्बन के मास के साथ रिलेट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? रिजल्टिंग मासेस ऑफ एटम्स आफ्टर रिलेटिंग इट with the mass of carbon atom are known as relative atomic masses और RAM, relative atomic masses, और इसको atomic weight भी बोलते हैं। तो relative atomic mass is nothing but the mass of any atom which you get after comparing or relating it with the mass of a carbon atom, जो हमारा स्टैंडर्ड एटम है। ठीक है, समझ में आया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास किलोग्राम्स या ग्राम्स में नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट या डायरेक्ट मास नहीं है। इट इज अ रिलेटिव मास, कंपैरिजन वाला मास है वो। तो कैसे कंपेयर करते हैं, चलो उसको देखते हैं। In the beginning, the mass of hydrogen atom, hydrogen being the lightest element, it was chosen as unit and masses of other atoms were compared with the mass of hydrogen atom. तो पहले हाइड्रोजन को चूज किया, बट इन 1961 कार्बन 12, ये कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 is a atom of carbon which contains 6 protons, 6 electrons
एंड 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन 12 वो एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब कार्बन 12 का अगर तुम मास देखोगे तो उसमें दो पार्टिकल ऐसे हैं जिसके मासेस हम कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो नेग्लिजिबल होता है उसका मास। तो कार्बन का जो मास है, इट इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, विच इज 6 + 6 विच इज 12। सो क्योंकि कार्बन में 12 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसका मास हम यूनिट मास कंसिडर कर सकते हैं। यूनिट मास मैं तुम्हें फिर से बता दूं, देखो कोई भी एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके रिस्पेक्ट से उसके मासेस को हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जो मासेस होते हैं उसका एक यूनिट है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है। सो मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना, मास ऑफ ईच ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल इज 1 AMU। हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल, हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, उसको हम नहीं मानते। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, बट या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव मासेस ऑफ 1 AMU ईच। तो कितने टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है? 12। तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया? 12 AMU। बिकॉज मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 AMU, इसको हम लोग C12 या कार्बन 12 एटम भी बोलते हैं। ठीक है। So carbon 12 was finally selected because its adoption least affected the values of atomic mass of various elements on the old standard। मतलब कार्बन से जब कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 एटम से जब हम दूसरे एटम्स के मासेस को कंपेयर करते हैं, तो जो दूसरे एटम्स के मासेस की वैल्यूज है वो एक्यूरेट आती है। ठीक है। और हाइड्रोजन से जब कंपेयर हम कर रहे थे तो जो वैल्यू मिली थी उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से वी आर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यूज। इसलिए कार्बन 12 एटम को चूज किया गया क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा अबेंडेंटली फाउंड एलिमेंट है। कार्बन 12 क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 12 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है। इतना समझ गया? ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें एटम्स का जब मासेस कंसिडर करना है तो वी हैव टू कंसिडर देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, नॉट एब्सोल्यूट मासेस। एब्सोल्यूट मासेस ग्राम्स में होता है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस किस में होता है? एटॉमिक मास यूनिट में। एंड इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ एटम्स विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम विच इज कार्बन 12। ठीक है। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन देने वाला हूं, इसको लर्न कर लेना, समझ लेना और फिर लर्न कर लेना। मैं दोनों तुम्हें हेल्प करूंगा करने में। द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट क्या होता है? इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मतलब कोई भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 एटम से 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम से कितना हैवी है, वो ही उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अब 1/12 वाला जो आइडिया है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कार्बन 12 एटम जो है उसका मास कितना है? 12 AMU। ठीक है। मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 AMU। तो कैन यू टेल मी देयरफॉर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 कितना होगा? कार्बन 12 एटम का 1/12 मास कितना होगा? 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम विच इज 12 AMU। तो 12 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 AMU। मतलब किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम 1 AMU से कितना ज्यादा हैवी है, वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब मैं विदाउट एनी डिले तुम्हें एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देके समझा देता हूं ताकि तुम्हारे अंदर ये चीज घुस जाएगी। ठीक है। चलो,
तो हम लोग ये समझते हैं, एक स्टेटमेंट में देता हूं, चलो। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU। इसका मतलब क्या है पता है? इट मीन्स, ये नोट कर लेना प्लीज, दैट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है? तो तुम्हें लर्न हो जाएगी डेफिनेशन। इट मीन्स दैट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom। ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से 16 टाइम्स हेवियर है, इसीलिए मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 AMU। अभी मैंने बताया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है? 1 AMU। और 1 टाइम्स 16 मतलब 1 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअली मास नहीं होना चाहिए यहाँ पे, रिलेटिव एटॉमिक मास होना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। चलो एक तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें एक देता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU। इसका मीनिंग क्या है? वीडियो पॉज करके लिखो। ट्राई किया, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आ रहा है बहुत अच्छी बात है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU मीन्स दैट मास of one atom of hydrogen is 1 times heavier than mass of 1/12 the mass of, sorry, then 1/12 the mass of a carbon 12 atom। ठीक है, इसीलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को 1 AMU बोलते हैं। चलो अब उल्टा एक एग्जांपल देता हूं, बट थोड़ा उल्टा। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देने वाला हूं। ओके, mass of one atom of sodium is 23 times heavier, और वन एटम ऑफ सोडियम इज, मास ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 the mass of 1/12 the mass of a carbon 12 atom। इसका मीनिंग क्या है? फिर से बताता हूं। सोडियम का एक एटम 23 टाइम्स हेवियर है 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दैट दैट मीन्स दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 यूनिट्स, या फिर 23 AMU। कभी कभी यू भी लिखते हैं, कभी कभी AMU भी लिखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट्स भी बोलते हैं, यूनिट्स भी बोलते हैं। एटॉमिक लेवल पे जो मासेस है उसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है, उसको कभी कभी यूनिट भी बोलता है। ये स्टेटमेंट समझ में आया तुमको? वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो गया? 23 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU, मतलब one atom of hydrogen is 1 times heavier than 1/12 the mass of carbon 12 atom, right?
तो यही तो है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन. द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट of an element is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 that 1/12 the mass of 1/12 times या 1/12 the mass of a carbon 12 atom. ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हें समझ गया. लेकिन हमेशा याद रखना कि सारे रिलेटिव एटॉमिक मासेस होल नंबर नहीं होते. ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है. रिलेटिव एटॉमिक मासेस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है. ये सारे होल नंबर नहीं होते, उनको राउंड ऑफ करके होल नंबर बनाया गया है. ठीक है, कुछ कुछ रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम होल नंबर नहीं बना सकते, इनको फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस बोलते हैं. It is observed that most atomic masses are not whole numbers. The reason is that most natural elements are a mixture of constant composition containing two or more isotopes. बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स में आइसोटोप्स होते हैं. अब तुम बोलोगे आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element having same atomic number but different mass number. जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं, एक का मास 35 है, दूसरे का मास 37 है. तो तुम बोलोगे सर ये दोनों फिर क्लोरीन कैसे हुए? ये दोनों क्लोरीन है बिकॉज दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 17. दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 17 है, बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हाँ वो भी 17 है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग अलग है. ये जो 35 मास वाला क्लोरीन है उसमें प्रोटॉन 18 है, सॉरी न्यूट्रॉन 18 है, और 37 मास वाला जो क्लोरीन है उसमें न्यूट्रॉन्स 20 है. इसलिए ये दोनों के मासेस अलग अलग है. अच्छा, नेचर में ये जो क्लोरीन है इट इज फाउंड इन द रेशियो 3:1. तो जब एवरेज निकालेंगे 35 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेशियो दैट इज 4, वी गेट 35.5. सो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है क्लोरीन का 35.5. सिर्फ क्लोरीन नहीं है, कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके एवरेज एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में है. तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे बुक में रिलेटिव एटॉमिक मासेस के या एटॉमिक वेट का जो पूरा चार्ट है, टेबल है, वो दिया होगा. अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट डेफिनेटली तुम्हारी बुक में ये टेबल रहेगा और हमने ये टेबल पहले देखा हुआ है. ठीक है, ओके. नोट में क्या लिखा है? द मास ऑफ एन आयन विल बी सेम एज दैट ऑफ अ पेरेंट एटम. क्योंकि आयन कब बनता है? आयन जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है या गेन होता है तब बनता है. ठीक है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड और लॉस्ट इन फॉर्मिंग आयन कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू द टोटल मास ऑफ एटम. तो मास ऑफ आयन और मास ऑफ एटम हमेशा हम सेम कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने एग्जांपल के साथ, डेफिनेशन के साथ बताया. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट. ये भी टर्म तुमने सुनी होगी, बट इसका मीनिंग क्या है? The relative molecular mass or molecular weight of an element or a compound is the number of times that molecule, one molecule of that substance is heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom. मतलब इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास जैसी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ टाइम्स एंड वन एटम ऑफ द एलिमेंट था. यहाँ पे क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में? नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम की जगह क्या आ जाएगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा? द सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से कितना टाइम्स हेवियर है, कितना टाइम्स हेवियर है, वो उस सब्सटेंस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट होता है. ठीक है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत इजी है. जितने भी एटम्स है उसके एटॉमिक वेट्स या रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम लोग ऐड करते जाएंगे. जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, H2SO4. एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, उससे उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूं और मैं डेफिनेशन के साथ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा. आप देखो,
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM, वो पहले क्या था RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। चलो पहले इसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे इसको? वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है? दो। हाइड्रोजन दो है। एक हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? 1, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16, तो ये हो जाएगा 2 + 16 विच इज 18 यूनिट्स या 18 AMU। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 18 यूनिट्स या 18 AMU। इसका क्या मतलब है पता है? Relative molecular mass of water is 18 units या 18 AMU. It means that one molecule, एटम लिखते थे ना पहले, उससे उसकी जगह पे आ गया मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is 18 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom. One molecule of water is 18 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom. एक मॉलिक्यूल वाटर का कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से 18 टाइम्स हेवियर है, एंड दैट मीन्स दैट रिलेटिव molecular mass of H2O is equal to 18 units. ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं। ये तो वाटर हो गया, और एक एग्जांपल देता हूं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इसका मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। कार्बन कितने? 1, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। सो 12 + 32 विच इज 44 यूनिट्स। राइट, ये कैलकुलेशन का मेथड बताया मैंने तुम्हें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ आई विल राइट इट इन स्टेटमेंट। वन मॉलिक्यूल of CO2 is 44 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom। देखो, सबको कंपेयर या रिलेट किससे करना है हमें? 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से कितना हेवियर है, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 यूनिट्स है। इसका मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 टाइम्स हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। सिंपल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं। चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ O2। Let's take an example of O2. O2 क्या है? What is O2? O2 is oxygen molecule. O2 क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किससे बना है? 2 atoms of oxygen। ठीक है, नाउ इफ आई टेल यू, कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे आराम से, लेकिन इफ आई टेल यू दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन is 32 times heavier than 1/12 the mass of
a carbon 12 atom. One molecule of oxygen is 32 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom. ठीक है? Since one molecule of oxygen is 32 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom, हम लोग क्या बोल सकते हैं? Relative molecular mass, therefore relative molecular mass of oxygen molecule is 32 units or 32 AMU. समझ में आया? वैसे तुम मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस का मीनिंग भी समझ सकते हो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस हम निकाल भी सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि जस्ट मोमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि तुम्हारे पास सारे जितने भी मेन मेन एटम्स है उनके रिलेटिव एटॉमिक मास का पूरा जो लिस्ट है, टेबल है या चार्ट है, वो होना चाहिए, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में होगा। तो तुम किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, चाहे वो मॉलिक्यूल ऐसा मतलब एक ही एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल हो या फिर कोई अलग अलग एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल हो, जैसे CO2 देखा, H2O देखा। और एक एग्जांपल जो उन्होंने दिया है, लेट मी शो यू दैट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे ढूंढना है तो कैसे करूंगा? देखो, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन, प्लस सल्फर कितना है? 1। सल्फर का मास है 32। ये सब मुझे लर्न हो गया है, तुम्हें भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, दैट इज 34 प्लस 64, कितना हो जाएगा? 98 यूनिट्स, है ना? क्या है ये? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। फिर NH3 अमोनिया, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का है 15। कितने एटम्स है नाइट्रोजन के? अमोनिया के मॉलिक्यूल में, ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन का मास है 1 और कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 15 प्लस 1 कितना हो गया? 18 AMU या 18 यूनिट्स। ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और मोल कॉन्सेप्ट में ये कैलकुलेशन का बहुत काम आए। ठीक है, सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट का मीनिंग समझ गया? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी molecule of or any element or compound, or relative molecular mass of one molecule of any element or compound is the number of times that molecule is heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom, जो मैंने तुम्हें थियोरेटिकली भी समझाया, कैलकुलेशन से भी समझाया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं इधर ही बता देता हूं तुम्हें। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस और मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4.5H2। अब तुम बोलोगे सर ये .5H2O क्या है? CuSO4 तो ठीक है, कॉपर सल्फेट, लेकिन ये .5H2O क्या है? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तुम पढ़ोगे, शायद तुमने पढ़ा भी होगा अभी तक, लेकिन तुम्हें अगर नहीं पता है तो समझ लो कि ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, इनका अगर मॉलिक्यूलर मासेस निकालना है मुझे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए हुए, कॉपर का दिया है, सल्फर का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। यहाँ पे कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मासेस हमको यूज आएंगे। कॉपर का कितना है? 63.5। ठीक है, एस, कितना कॉपर है? एक, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है। एस भी एक ही है, 32। O4 मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऑक्सीजन का मास 16 है, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, प्लस प्लस 5 टाइम्स H2O। H2O का मास हमने अभी निकाला था 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 249.5 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O। वैसे ही ये अमोनियम सल्फेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन से बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ एक बात याद रखना कि NH4 है, फिर ब्रैकेट है, फिर ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन भी 2 है और हाइड्रोजन 4 टू 8 है। ठीक है, याद रखना। और सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, ऐसे करके ऐड करके तुम निकाल सकते हो। सो दो टॉपिक अपने क्लियर हो गए, कौन से? रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है
बहुत इजी है, बहुत इजी। दो इजी टॉपिक्स है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक ही साथ बता देता हूं। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर तुम ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। मतलब हम जो यू लिखते हैं, यूनिट्स या एएमयू लिखते हैं, उसको हटा के, एएमयू को हटा के अगर जी लिख दिया, ग्राम्स लिख दिया, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 एएमयू, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम्स। सिर्फ एएमयू को हटा के ग्राम्स लिख देना है, तो एटॉमिक मास से क्या बन जाएगा? वो ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। अच्छा, और एक डेफिनेशन है, छोटा सा बट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट विच वेज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास is called 1 gram atom of that element. The quantity of the element which weighs equal to its gram atomic mass is called 1 gram atom of that element. 1 gram atom मतलब 1 gram atom of ऑक्सीजन, मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। कोई भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, that is equal to its relative atomic mass expressed in grams, and that quantity is also known as 1 gram atom of that element. तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट्स एएमयू, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 16 ग्राम्स। अब ये जो 16 ग्राम्स क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, that is also known as 1 gram atom of oxygen. Similarly, 1 gram atom of sodium is 23 grams of sodium. 1 gram atom of helium is 43 gram, sorry, 4 grams of helium, I'm sorry. ठीक है। उसके बाद है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी इजी है। The molecular mass of a substance expressed in grams is called gram molecular mass or molar mass. जब किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को तुम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है या फिर मोलार ग्राम्स बन जाता है। ठीक है। जैसे कि वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 एएमयू, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम्स। एएमयू को हटा के ग्राम्स डाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक ही बात याद रखना कि हम वाटर की बात कर रहे हैं जो एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, एटम्स की बात नहीं कर सकते। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ओनली रिलेटेड विथ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 1 gram molecule of a substance is equal to the quantity of that substance in its gram molecular mass. मतलब 18 grams of water is 1 gram molecule of water. ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब ये चारों कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास with 1 gram atom and 1 gram molecule are to be used very frequently in mole concept. So we are very close to starting our very important concept which we are going to learn in this video, that is mole concept. Are you guys ready? Are you guys excited? Because this is something very very unique you are going to learn. ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल्स इतना मजा आता है करने के लिए। हाँ, इसमें शायद थोड़ा बहुत यू कैन से कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इट इज इंटरेस्टिंग नन द लेस। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स सी mole concept. See, it is not practically possible to find the mass of a minute particle like atom, molecule, or ion. So, a collection of 6.022 times, this is times multiplied by 10 to the power 23 elementary particles. What do you mean by elementary particles? Elementary particles are atoms, molecules, ions, etc. So, a collection of 6.022 times 10 to the power 23 elementary particles is always considered together. ठीक है। And this collection is called a mole. This collection is called a mole. ठीक है। And this mole is taken for all practical purposes. So when we talk about some elements or molecules, we don't say that two
molecules of hydrogen or 3 atoms of oxygen. Yeah, we call that when we are studying chemical reactions. But when we are speaking at a general perspective, okay, we cannot talk in terms of number of atoms because number of atoms are not visible. We cannot find the practical solutions with the number of atoms. So collection of number of atoms, collection of number of molecules, collection of number of ions, collection of number of elementary particles are always beneficial. And just see this number, the collection of these elementary particles, uh, when they are 6.022 into 10 to the power 23 in number, how much big is that? 6.022 times 10 to the power 23, that means 6022, these many particles. This collection of these many particles of a substance is called 1 mole of that substance. So if I have these many oxygen atoms, that is 1 mole of oxygen atom. And we don't remember this long number. This is highly stupid. We remember this number. So a collection of these many particles is known as 1 mole. 6.022 into 10 raised to 23 particles of a substance is equal to 1 mole of that substance is equal to 1 mole of that substance. 6.022 times 10 to the power 23 particles of a substance is equal to 1 mole of that substance. Right? Great. So now we know what 1 mole exactly is. 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance. Okay. See, I can give you some synonyms so that this concept of mole gets cleared. Similarly, you have some synonyms like 1 dozen. You know what is 1 dozen? 1 dozen is 12 numbers, 12 items or 12 things, 12 objects, right? 1 score. Do you know what 1 score is? 20 articles, 20 objects, 20 items. Then there is, you can say, in terms of years also we use like a decade or you can say uh, century. Yeah, century, 1 century. 1 century is 100 articles. Generally, 1 century is used for years. So 1 century is 100 years. 1 decade is 10 years. 1 week is 7 days. Like that, we have already made some collection. We have given some specific name to collection of certain things. Those things can be number of days, number of years, number of articles, anything, right? Similarly, the collection Similarly, the collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles of a substance is known as 1 mole of that substance. अब समझ में आया तुम्हें 1 mole क्या होता है? Mole is simply like a dozen or a gross. Gross is a collection of 144 objects. Dozen is a collection of 12 objects. Similarly, mole is a collection of 6.022 times 10 to the power 23 particles. Those can be atoms, molecules or ions, elementary particles, subatomic particles, atoms, anything. Correct? So mole's definition, have a look. A mole is the amount of pure substance containing the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of carbon. ये मोल का definition है जिसको तुम्हें इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है बट इसको याद रखना है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड.
Mole is the amount of pure substance containing the same number of chemical units. Chemical units मतलब वही atoms, molecules, elementary particles. As there are atoms in exactly 12 grams of carbon. जितने atom 12 grams of carbon में है, उतने ही particle किसी भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंसेस में जब होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस 1 मोल है. ठीक है. व्हेन द पार्टिकल इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, जब पार्टिकल को स्पेसिफिकली हम मेंशन नहीं करते, देन 1 मोल इज टेकन एज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. जब पार्टिकल को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हम, तो 1 मोल को 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को हम लोग ले लेते हैं, या फिर we can take it as 6.022 into 10⁻23. So generally it is preferred that we take 6.022 into 10⁻23 as the number of particles. And that brings us to our next topic, which is Avogadro's number. Avogadro's number is defined as the number of atoms. Avogadro's number is defined as the number of atoms present in 12 grams, which is the gram atomic mass, of carbon 12 isotope. Avogadro's number is defined as the number of atoms present in 12 grams of carbon 12 isotope. That is 6.022 into 10⁻23 atoms. ठीक है. मतलब कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम्स में जितने कार्बन के एटम्स होते हैं वही एवोगाद्रो नंबर है. और हमें पता है कार्बन 12 एटम का जो 12 ग्राम्स है, that is 1 mole of carbon, because 12 grams is the relative atomic mass of carbon, and the quantity which is equal to the relative atomic mass in grams, that is gram atomic mass, is equal to 1 mole of that substance. ठीक है. तो 1 mole of carbon contains 6.022 into 10⁻23 atoms. ठीक है. एवोगाद्रो नंबर का और एक डेफिनेशन है. एवोगाद्रोज नंबर is the number of elementary units, that is atoms, ions or molecules present in 1 mole of a substance. It is denoted by n subscript a. n और थोड़ा नीचे a लिखना है. यह है तुम्हारा एवोगाद्रोज नंबर. और भी कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, हम लोग पढ़ लेते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू विथ एग्जांपल्स. अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, तुम्हें इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा ये. मेरे को थोड़ा टाइम दे दो. ठीक है. ऑलवेज गिव सम टाइम सो दैट अ टीचर कैन डू हिज जॉब प्रॉपरली. नहीं तो वही तुम्हारी स्कूल जैसा, कुछ भी पढ़ा के छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट कोई भी टॉपिक को अच्छे से समझ लो. टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है. जिसको सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ना है वो मेरे साथ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके सारे गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं. मोल कॉन्सेप्ट ऐसा एक टॉपिक है जो तुम्हें 11th-12th में भी आएगा, जो साइंस लेगा उसको. तो जिसको आगे के कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है वो लोग टाइम लेके पढ़े, और जिसको जल्दी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं फिर अपने हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मोल ऑफ एटम्स. 1 mole of atoms contains 6.022 into 10⁻23 atoms having mass equal to its gram atomic mass. For example, 1 mole of oxygen atoms contain 6.022 into 10⁻23 atoms of oxygen and weighs 16 grams. किसी भी एलिमेंट का 1 mole will be equal to 6.022 into 10⁻23 atoms of that element and will weigh equal to its gram atomic mass. उसका वेट कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास जितना. ठीक है. उसके बाद है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 mole contains 6.022 into 10⁻23 molecules and it is equivalent to gram molecular mass of any given substance. मतलब 1 mole of oxygen molecules, O2 मतलब oxygen molecules, contains 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen and weighs equal to the gram molecular mass of oxygen, which is 32 grams. Similarly, 1 mole of water contains 6.022 into 10⁻23 molecules and weighs equal to its gram molecular mass, which is 18 grams.
तो सब में एक चीज कॉमन है, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल आया मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आया। ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं, एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं मैं। ये जो कुछ बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को है और ये मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूं उनके लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। जिसको मोलार वॉल्यूम है और मोलार वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो तो ये पढ़ेंगे। जिसको नहीं है वो भी एक बार सुन लेंगे, क्योंकि सुनने में तुम बहरे नहीं हो जाओगे, तुम्हारे कान से खून नहीं निकलेगा। सुनने में कुछ नहीं जाता ना, एक बार समझ लो, क्योंकि ये भी एक एक्सटेंशन है मोल का, एक रिलेशनशिप मैं जो तुम्हें देने वाला हूं। मोल एंड मोलार वॉल्यूम। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल, अगर गैस है तुम्हारे पास, वो गैस का अगर तुम 1 मोल लेते हो तो इट विल ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब और लीटर्स, इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर्स एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, इसको केमिस्ट्री में एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। इस एसटीपी पे कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा। कोई भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर ही होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। तो मोलार वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो गई, प्लीज नोट कर लेना इसको। द मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? मोलार वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब या फिर 22.4 लीटर्स या फिर 22,400 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वो लोग ने रिलेशनशिप्स दिए हैं। सो इसके बाद न्यूमेरिकल्स तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट के शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें खुद रिलेशनशिप बिल्ड करके बता दूंगा। चलो, नाउ द टाइम हैज कम कि मैं थोड़ा मेरी क्रिएटिविटी दिखाऊं रादर देन टेक्स्ट बुक पढ़ के बता दूं। तो बिहोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स, मोल कॉन्सेप्ट हैज बिगन। चलो, क्या है मोल कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट को अगर तुम मुझे बोलो कि सर मोल कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में बता दो, मोल कॉन्सेप्ट इन 1 सेंटेंस, मोल कॉन्सेप्ट इन 1 सेंटेंस, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का मतलब हो सकता है एलिमेंट या फिर कंपाउंड। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, कंटेन्स 6.022 times 10 to the power 23 atoms or molecules of that substance। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है उस सब्सटेंस के। एटम्स कब करेगा कंटेन? जब वो एलिमेंट होगा। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, and 1 mole of any compound will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of that substance। ठीक है, ये एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन यहां पे, weighs equal to its ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इतना मॉलिक्यूल। देखो, फिर से बताता हूं, तुम्हारे पास 1 मोल है किसी एक सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस एलिमेंट या फिर कंपाउंड कुछ भी हो सकता है।
वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा उस सब्सटेंस के, और उसका जो वेट होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का जो वेट होगा, वो उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास या फिर उस कंपाउंड के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इक्वल होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, so 1 mole of any substance contains 6.022 into 10⁻23 atoms or molecules of that substance and weighs equal to its gram atomic mass or gram molecular mass. And it's if it is gaseous, if it is gaseous, it will occupy, if it is gaseous, it will occupy 22.4 liters or 22,400 cc of volume at STP। ये है उसका मोलार वॉल्यूम, ये उसका मोलार मास, ये है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और ये है 1 मोल। ये पूरा एक सेंटेंस में तुम्हें मैंने पूरा मोल कॉन्सेप्ट बता दिया। अब तुम बोलोगे सर ये ठीक है, ये आपने तो डेफिनेशन है जो वही लिख दी है, बट एक एग्जांपल तो दे दो सर। दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ एग्जांपल। चलो लेट्स टेक 2-3 एग्जांपल्स। 1 mole of oxygen atoms, 1 mole of oxygen atoms contain how many oxygen atoms? 6.022 into 10 to the power 23 oxygen atoms. Contain 6.022 into 10 to the power 23 oxygen atoms. Weighs equal to its ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, विच इज इक्वल टू 16 ग्राम्स, एंड occupies 22.4 liters at STP। ऑक्सीजन तो गैस ही होता है, ठीक है, तो उसके लिए मोलार वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, 1 mole of oxygen atoms contain 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen and weighs equal to 16 gram, which is its gram atomic mass, and occupies 22.4 liters at STP। और एक एग्जांपल देखो, 1 mole of water contains 6.022 times 10 to the power 23 molecules of water, that is H2O, weighs equal to 18 grams, which is its gram molecular mass of water। ठीक है, 18 grams is gram molecular mass of water, एंड यहां पे आएगा डैश, क्यों? क्योंकि वाटर तो लिक्विड होता है, तो इफ इट्स गैशियस ओनली देन दिस कॉलम हैज टू बी फिल्ड। ठीक है, इफ इट्स नॉट गैशियस यू डोंट हैव टू फिल दिस कॉलम ऑलवेज। ठीक है, समझ में आया तुम्हें 1 मोल का क्या है? तो थोड़ा मैं तुम्हारे साथ गेम खेल सकता हूँ, राइट? अभी एक गेम खेलते हैं छोटा सा, क्योंकि हमें सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है, तो गेम इतना बड़ा मैं नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ, छोटा गेम तो हम खेल ही सकते हैं। चलो, ओके, 2 moles of CO2 contains dash and weighs dash and occupies dash, fill in the blanks। पॉज द वीडियो और ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं इसका आंसर क्या है।
ठीक है, ट्राई किया, चलो। देखो मैंने तुम्हें बोला था मोल कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो मुझे बताओ कि अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो 2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? एक्चुअली एटम्स नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि CO2 तो कंपाउंड है, राइट? तो 2 moles of CO2 will contain 2 times 2 multiplied by 6.022 times 10 to the power 23 molecules of CO2. You know which is how much? 2 times 6.022 into 10 raised to 23। ये 2 को ये 10 to the power 23 से कोई लेना देना नहीं है, इसको एज इट इज रखो, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12.044 times 10 to the power 23। 12.044 times 10 to the power 23। ठीक है, तो 2 moles of carbon dioxide contains 12.044 times 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide। weighs, देखो तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता है कार्बन डाइऑक्साइड का? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमने निकाला था 12 प्लस कार्बन का 12 है मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 है इंटू 2, सो 12 प्लस 32 44 आया था। और हमें एक बात पता है कि अगर 1 मोल हमारे पास CO2 है, तो दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ CO2, है ना? ये तो रिलेशनशिप पता है हमें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वेज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि 1 मोल नहीं है ना, हमारे पास 2 मोल्स है। तो 1 मोल का वेट अगर 44 ग्राम्स है, तो 2 मोल्स का वेट कितना होगा? वेज इक्वल टू 2 टाइम्स 44, विच इज 88 ग्राम्स। 2 moles of carbon dioxide weighs 88 grams। ठीक है, इजी है, यूनिटरी मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑक्यूपाइज, देखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइज एट एसटीपी, यहाँ पे लिखना चाहिए कितना एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। देखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स, तो 2 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस विल ऑक्यूपाई हाउ मच? 2 टाइम्स 22.4 लीटर, डबल जगह ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कितना? 44.8 लीटर्स एट एसटीपी। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, या वेट चेंज हो जाता है, या फिर वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाता है, तो सारी दूसरी क्वांटिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यही मोल कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें समझना है। यही हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज समझ लेना, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में तो सिर्फ ऑक्सीजन होता है, लेकिन 1 मोल ऑफ वाटर में H2O होता है। तो कैन यू टेल मी कि 1 मोल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? देखो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मुझे बताओ कि 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? देखो हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 2 times 6.022 into 10⁻23, that is 12.044 into 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के 1 मोल ऑफ वाटर में। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद अ सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो हो गया था, यहां से मोल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अच्छा, लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, बिकॉज
then we can stop at the right time. I'm sorry for that. ओके, सो देर आर अराउंड 9 क्वेश्चंस अब, और मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक्स है वो खत्म हो जाएगा, तो 9 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अभी। एटलीस्ट मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। 9 क्वेश्चन से समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं तब जाके पूरा समझ में आता है, तभी भी नहीं आता है बहुत लोगों को। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये 9 से तो एक 2 से शुरू कर रहे हैं, तो ये 8 क्वेश्चन से तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे किया जाता है। फिर तुम ट्राई करोगे, गलत होगा, कोशिश करोगे, ये सब तो चलता रहेगा, ये तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस है और इसमें मैं बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तुम अपने हिसाब से सीखोगे, सबका अपना अपना एक लर्निंग पैटर्न, लर्निंग कर्व होता है। ठीक है, चलो। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल और 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6 टाइम्स 10⁻23। मतलब एवोगाड्रो नंबर तुम्हें दे दिया है। ठीक है, 1 मोल कंटेन्स 6 टाइम्स 10⁻23 एटम्स, ये तुम्हें दे दिया है इंफॉर्मेशन। Calculate the number of molecules in 14 grams of nitrogen gas. Okay. So nitrogen gas, याद ध्यान से देखना, nitrogen gas is made up of nitrogen molecules, N2 molecules. ठीक है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढना है 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस में। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू नाइट्रोजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 14 टाइम्स 2, क्योंकि N2 हो गया ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम्स। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। हमारे पास कितना ग्राम्स है नाइट्रोजन, 14 grams. So how many moles of N2 is equal to 14 grams? So that is 14 multiplied by 1 upon 28. That is 1 by 2, which is 0.5, 0.5 moles. So हमारे पास 0.5 moles है। किसका 0.5 moles है, नाइट्रोजन का। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट नाइट्रोजन। नाउ 1 mole of N2 contains 6 to 6 times 10 to the power 23 molecules. 1 mole contains this many molecules. So 0.5 moles, 0.5 moles will contain how many molecules? Unitary method, 0.5 times 6 times 10 to the power 23, which is 3 times 10 to the power 23. ठीक है, सो नाइट्रोजन अगर मेरे पास 0.5 मोल्स है तो उसमें 3 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया, आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट है, यहां पे देख लो आंसर, यस। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ध्यान देना गलती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, सेकंड क्या है, वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 18 grams of water. ठीक है, now we know that relative molecular mass of water is 18 grams. Therefore 1 mole of water, 1 mole of water is equal to 1 mole of water is equal to 18 grams of water, which contains
6.022 times 10, oh, I'm sorry, 6 times 10 to the power 23. 6 times 10 to the power 23 molecules of water, है ना। 1 मोल ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, विच इज 18 ग्राम्स। हमें क्या ढूंढना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर ढूंढना है, ठीक है। नाउ तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के। अब एक चीज हमें क्लियरली पता है कि ईच molecule of water, each molecule of water has 3 atoms, मतलब वन, ईच मतलब वन मॉलिक्यूल, ईच मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, राइट। 2 + 1 3। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वाटर के? therefore 6 times 10 to the power 23 molecules of water has how many atoms? यूनिटरी मेथड, सारा मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड पे। अगर यूनिटरी मेथड स्ट्रांग है तो मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। 6 times 10 to the power 23 times 3 upon 1, that is 18 to times 10 to the power 23 atoms। मतलब if you have 18 grams of water, they will have in all 18 times 10 to the power 23 atoms of water। इसको तुम साइंटिफिक फॉर्म में भी कर सकते हो, so it will become 1.8 times 10 to the power 24 atoms। सेम थिंग, नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 18 times 10 to the power 23। लास्ट क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 grams of एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, डरना मत। तुम्हें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 grams ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर नहीं है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो ठीक है, CaCl2 ही हो जाएगा ये, ठीक है। क्लोराइड आयंस इसमें कितने हैं ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना क्लोराइड आयंस कैसे कैसे पता लगाएंगे। पहले तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 पहले पता लगाओ। देखो कैल्शियम का है 40 रिलेटिव एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन का है 35.5, मैंने तुम्हें बताया था फ्रैक्शनल एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है इसका, टाइम्स 2 क्योंकि 2 क्लोरीन है। सो 40 + 71, दैट इज 111 रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड। एक्चुअली ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहिए यहाँ पे मुझे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे मैं ग्राम्स भी लिख सकता हूँ। therefore 1 mole of CaCl2 is equal to 111 gram of CaCl2, which is equal to 6.0 sorry 6 into 10 to the power 23, क्योंकि हमें वही नंबर दिया है 6 times 10 to the power 23, जो क्वेश्चन में दिया है उसी नंबर से करना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2, राइट। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स है CaCl2 के ना, ईच नहीं लिखते, 1 लिखते हैं, मैंने पहले भी यही मिस्टेक की थी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 कंटेन्स 2 क्लोराइड आयंस, है ना। हर एक में 2 क्लोराइड आयंस, Cl2 2 क्लोराइड आयंस contains 2 chloride ions। therefore 6.
बार बार 6 पॉइंट लिख रहा हूं यार. Therefore 6 times 10 to the power 23 molecules of CaCl2 will contain how many chloride ions? That is 6 to the power 10, 6 times 10 to the power 23 times 2, which is 12 to the power 12 times 10 to the power 23 ions of chloride. ठीक है, ऐसे करके तुम मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. मोल कॉन्सेप्ट का यूज तो अभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा. एंड ये यूनिटरी मेथड जो कैसे यूज करनी है, ये भी मुझे लगता है कि यू माइट बी गेटिंग दैट आइडिया नाउ. चलो, अब कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे बीच में, ऐसे सारे बड़े क्वेश्चंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम्स ऑफ इट. ओके, सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH वो तो निकालना ही पड़ेगा. Na का है 23, O का है 16, H का है 1. सो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 विच इज 40 ग्राम्स. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ NaOH is equal to 40 grams of NaOH. 1 mole of NaOH is equal to 40 grams of NaOH. So how many moles of NaOH are present in 160 grams of it? So how many moles are present in 160 grams of NaOH? 160 multiplied by 1 upon 40, cross multiplication, unitary method, 4 moles. मतलब अगर 1 मोल 40 ग्राम है NaOH का, तो कितना मोल्स 160 ग्राम्स होगा? 4 मोल्स. सिंपल. ये तो ओरली भी कर सकते हो, इतना इजी है. बट मोल कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने पढ़ा है, तो वी ऑलवेज हैव टू मेक एंड शो दैट वी कैन राइट द स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर सेंटेंसेस, एंड देन यूनिटरी मेथड से हम लोग आंसर उसका इजीली निकाल सकते हैं. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ढूंढना भी बहुत जरूरी है हर एक क्वेश्चन में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the mass in grams of 2.5 moles of slaked lime? Okay, see 1 mole. Oh, I'm sorry. पहले तो लिखूंगा मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्लेकेड लाइम CaOH ट्वाइस. कितना हो जाएगा? 40 प्लस ऑक्सीजन ट्वाइस मतलब 16 टाइम्स 2 प्लस हाइड्रोजन ट्वाइस मतलब 1 टाइम्स 2. दैट इज 40 प्लस 32 प्लस 2. दैट इज 40 प्लस 34. दैट इज 74 ग्राम्स. ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेकेड लाइम इज 74 grams. So we can say that 1 mole of CaOH twice weighs 74 grams. So how I'm sorry, उसने बोला है कि what is the mass in grams ना of 2.5 moles. So 2.5 moles of CaOH twice weighs how many grams? So 2.5 times 74. 2.5 times 74. 2.5 times 74 which is 185, जो यहाँ पे आंसर दिया है 185 ग्राम्स. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो 2.5 मोल्स का मास है दैट इज 185 ग्राम्स. करेक्ट. समझ में आया तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट? लेट्स गो अहेड. अब तो वी आर मोर देन हाफ वे देयर यार. मोल कॉन्सेप्ट तभी समझ में आना ही चाहिए तुमको. Calculate the mass of one atom of oxygen and one molecule of oxygen. Beautiful question. देखो, we know that 1 mole of oxygen uh, 1 mole of oxygen contains 6.022 times 10 to the power 23 atoms of oxygen and weighs equal to
weighs equal to the gram atomic mass of oxygen, which is 16 grams. तो अगर 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम्स है, तो हमें एक एटम का मास ढूंढना है. तो वन एटम का मास कितना होगा? दैट इज 1 टाइम्स 16 अपॉन 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23. सबसे पहले 10 टू द पावर 23 को ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 23 अपॉन 6.022. अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.657 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 23. सिंपल. ठीक है, मतलब एक ये ग्राम्स है, एक ऑक्सीजन का वेट इतना ग्राम्स होगा. मोल कॉन्सेप्ट के बिना कैसे पता लगाते ग्राम्स में एब्सोल्यूट मास कितना ऑक्सीजन का? दैट्स व्हाई मोल कॉन्सेप्ट इज यूजफुल. अच्छा, वन मॉलिक्यूल का भी मास हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन की. देखो, 1 मोल ऑफ O2, अब मैंने O नहीं लिखा है, O2 लिखा है क्योंकि मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास निकाल रहा हूं. 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 6.022 times 10 raised to 23 molecules of O2 and weighs कितना? 32 ग्राम्स. है ना, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स है. तो हमें क्या ढूंढना है? वन मॉलिक्यूल का मास. वन मॉलिक्यूल का मास कितना हो? दैट इज 1 टाइम्स 32 अपॉन 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23. दैट इज 32 अपॉन 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 23. और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें जो आंसर दिया है वो मिल जाएगा. दैट इज 5.314 times 10 to the power minus 23. That is the mass of one molecule of oxygen. Getting it? कैसे कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट. How many moles of sulfur atoms and oxygen atoms are present in 1 mole each of H2SO4, H2SO3 and SO2? Oh, देखो, हमारे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है, हमारे पास 1 मोल ऑफ H2SO3 है, एंड हमारे पास 1 मोल ऑफ SO2 है. उसने क्या बोला है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट. सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, देखो यहां पे तुम्हें कितने सल्फर के एटम दिख रहे हैं? ये एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक सल्फर का एटम है. ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ sulfur do you see over here? In 1 mole of H2SO4 there will be 6 times 6.022 times 10 to the power 23 molecules of H2SO4. Each molecule of H2SO4 will contain 1 molecule of sulfur. So that is, there are 6.022 into 10 raised to 23 molecules of sulfur in 1 mole of H2SO4, which is 1 mole of sulfur. मतलब यहाँ पे अगर सबस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब है सल्फर के एटम्स 1 मोल है. 1 मोल ऑफ H2SO4 में सल्फर कितना है? 1 मोल ऑफ H2SO4 में सल्फर है 1 मोल, एंड ऑक्सीजन है 4 मोल्स. 1 मोल ऑफ H2SO3 में सल्फर अगेन कितना है? 1 मोल, एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 मोल्स. कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो सबस्क्रिप्ट है ना, वही ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स है, क्योंकि हमें पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ SO2? सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट 1 मोल. Sulfur atoms are present. How many moles of sulfur atoms are present? 1 mole.
And how many moles of oxygen atoms are present? 2 moles, क्योंकि ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट 2 है। बहुत इजी। थोड़ा सोचोगे ना तो तुम्हें आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने ये आंसर निकाला। अगर नहीं समझा तो फिर से वो सुन लो मैंने क्या बोला है, तुम्हें समझ जाएगा। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए और एक बार मैं इधर ये भला समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। देखो, 1 मोल ऑफ SO2 में 6.022 टाइम्स 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। SO2 का हर एक मॉलिक्यूल 1 सल्फर एटम रखता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स रखता है ना? तो 6.022 SO2 के मॉलिक्यूल्स में कितने सल्फर एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 2 टाइम्स 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स का मतलब कितना मोल्स ऑफ सल्फर? 1 मोल ऑफ सल्फर। और 2 टाइम्स 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे क्या आएगा? 2 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स। ठीक है, दैट इज इट। ये है इसका आइडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A silicon chip is used in an integrated circuit of a microcomputer, has a mass of 5.68 milligrams. Okay, how many silicon atoms are present in this chip? Okay, so for that we should know the mass of silicon, that is relative atomic mass of silicon. See, 1 mole of silicon is equal to 6.022 times 10 to the power 23 atoms of silicon, which is equal to relative atomic mass of silicon. Let me just check. Relative atomic weight of silicon is 28.08. It's approximately 28 units. So gram atomic weight of silicon is around 28 grams. Okay, so 1 mole of silicon contains so many atoms and weighs so many grams. Okay, now this silicon chip has a mass of 5.68 grams. How many silicon atoms are present in it? So how many silicon atoms will be present in 5.68 milligrams? Milligrams into milligrams means into 10 raised to minus 3 grams. So simple unitary method will give us the answer. 6.022 times 10 to the power 23 times 5.68 times 10 to the power minus 3 upon 28. Okay, so you will write 6.022 over here, then 5.68, then upon 28, and then here you will write 10 raised to 23 times 10 raised to minus 3, that is 10 raised to 20. So here you will get rid of the decimal points, like see, there are 3 decimal points and here there are 2. So 6022 multiplied by 568 upon 28, and then there are 1 2 3 4 5 zeros times 10 to the power 20. ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, यू शुड गेट दिस आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशंस। इतना तो कैलकुलेशन तुम्हें करना आना चाहिए, right? Are you getting the answer? If you are getting this answer, that means you are right, your answer is correct. ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of sodium sulfate ions, sodium and sulfate ions in 14.2 grams of sodium sulfate. Okay. So sodium sulfate Na2SO4. ठीक है. इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 23 टाइम्स 2 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4. That is 46 plus 32 plus 64. Okay, so this will be 40 plus 60, 100 plus 10, 110 plus 32, 142 grams. Right? So we have to find sodium sulfate, sodium and sulfate ions and 14.2 gram of sodium sulfate. So now see, 1 mole of sodium sulfate contains 6.022 times 10 to the power 23 sodium sulfate molecules. Contains 6.022 times 10 to the power 23 sodium sulfate molecules and weighs 142 grams. ठीक है. तो हमारे पास 142 ग्राम नहीं है, सोडियम सल्फेट हमारे पास है 14.2 ग्राम्स. So how many molecules are there in 14.2 grams of sodium sulfate? So we get 14.2 times 6.022 times 10 to the power 23 the whole upon 142. So 14.2 times 10s are 142. So this will become 6.022 into 10 to the power 22. इतने हमारे पास molecules है, molecules of Na2SO4. और हमें क्या ढूंढना है? We have to find the ions, number of sodium ions and sulfate ions in these many molecules of Na2SO4. Now each, हमेशा मैं each लिखता हूं, one molecule of Na2SO4 contains two ions of sodium and one ion of sulfate. Two ions of sodium and one ion of sulfate. Therefore, 6.022 times 10 to the power 22 molecules of Na2SO4 will contain see, अगर एक मॉलिक्यूल में दो आयन है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितने आयन्स होंगे? 12.044 times 10 to the power 22 ions of sodium and 6.022 times 10 to the power 22 ions of sulfate. हर एक मॉलिक्यूल में अगर दो और एक आयन है सोडियम और सल्फेट के तो 6.022 टू द पावर 10 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स में सल्फेट के सोडियम के 12.044 टाइम्स 10 टू द पावर 22 और सल्फेट के 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स होंगे. सो ये तुम्हारा आंसर है. यहाँ पे वो लोग ने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है इसलिए ऐसा आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट सम इलेक्ट्रॉन्स. Calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of methane.
Okay, see, gram molecular mass of methane CH4 is 12 times 1 into 4. That is 12, sorry, 12 plus 1 into 4. That is 12 plus 4. That is 16 grams. Gram molecular mass of methane is 16 grams. अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो पूछ रहा है ना. 16 grams of methane has कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसमें. 6.022 times 10 to the power 23 molecules of methane. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब देखो 6.022 times 10 to the power 23 molecules of methane contain कितने एटम्स होते हैं इतने मॉलिक्यूल में. देखो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम होते हैं, तो 6.022 times 10 to the power 23 molecules of methane will contain 5 times 6.022 times 10 to the power 23 molecules of methane. Right? हे एक मिनट, molecules of methane नहीं, 5 times 6.022 times 10 to the power 23 atoms in all. हमें तो इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, तो नंबर ऑफ एटम हमें कोई काम आएगा कि नहीं आएगा. नहीं यार, नहीं आएगा, रुको रुको, ये गलत है. हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ढूंढना पड़ेगा हमें. देखो कार्बन, एक कार्बन है, तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है. अच्छा, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन में 12, मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा हटा देते हैं हम लोग. एक्चुअली यहीं पे मैं लिखता हूँ 1 molecule 1 molecule of methane contains 16 electrons, 12 in carbon, 4 in hydrogen. Therefore, 6.022 times 10 to the power 23 molecules will contain how many electrons? It will contain 6.022 times 10 to the power 23 times 16 electrons. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर. लेट मी गेट द आंसर फॉर यू. आप लोग भी चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ. ओके, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 9.63 या 9.64. 9.64 times 10 to the power 24 electrons. Total number of electrons in एक मिनट, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन है ना. ओहो यार, 1.6 ग्राम है. 1.6 ग्राम मतलब, देखो क्या मैं बोलूं अभी तुमको, ये तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन. 1.6 ग्राम मतलब 0.1 मोल. ठीक है. अच्छा चलो एक ही स्टेप आगे होगा. सो 1 मोल में 1 मोल ऑफ मीथेन हैज 9.64 times 10 to the power 24 electrons. So 0.1 मोल. 0.1 मोल क्यों? क्योंकि मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम से और हमारे पास 1.6 ग्राम मीथेन. So 0.1 mole of methane will have CH3
0.3 grams of methane will have 0.1 gram of methane will have 0.1 mole of methane will have how many electrons? That is 0.1 times 9.64 times 10 to the power 24. That is 9.64 times 10 to the power 23 electrons. Yes. 1.64 ग्राम ऑफ मीथेन। मुझे तो गड़बड़ लग रही है आंसर में। मतलब मेरा आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि मीथेन के हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं यार। सॉरी, मीथेन के हर एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में करेक्ट है, इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। एंड देन 0.1 मोल में ये तो गड़बड़ है। आई डोंट एग्री विद दिस, सो लेट मी जस्ट चेक। अरे कैसे आया यार इनको? लेट्स चेक इन्होंने क्या किया है। Calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of methane. 16 ग्राम 1 मोल, 1.6 ग्राम 0.1 मोल। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे यार? कार्बन में तो 12 होते हैं। ओह, कार्बन में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का मास 12 है। यस, 6 प्लस 4 10। करेक्ट 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 करेक्ट, गलती मेरी है। देखो मैं भी सिली मिस्टेक कर दिया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से तो समझ गए हम लोग के क्या हो गया। ठीक है। सो मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक आइडिया है वो तुम्हें आ गया है, with relative atomic mass, relative molecular mass, gram atomic mass, gram molecular mass and mole concept। ठीक है, तो ये तो तुम्हें अभी समझ गया है। न्यूमेरिकल्स भी कैसे आते हैं ये भी तुम्हें समझ गया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।